Shalom. Shalom. We welcome you to the online service of the Crown of Life The Crown of Ministries. Life Ministries के ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत है। This morning, it's a pleasure and privilege to stand before you to minister as His और इस representatives. समय सवेरे के वक्त ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर का नेतृत्व करते हुए हम आपके सामने खड़े हैं। As a pastor, एक पासवान होने के I नाते hear a lot of good and bad news these इन days. दिनों में अच्छे और बुरे समाचारों को मैं सुनता Good हूँ news of how people are getting married. और अच्छे समाचार कि कैसे लोगों का विवाह हो रहा Good है, news that how children are being born. कि कैसे बच्चों का जन्म हो रहा है। Good news that how the Lord in His eternal faithfulness, goodness and mercies have healed many people. अच्छा समाचार कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता में उन्होंने कैसे लोगों को चंगाई प्रदान किया In है। the midst of those good ये news, सारे अच्छे अच्छे there are समाचारों के some बीच bad news also बुरे समाचार भी सुनने को that मिलते I हैं, tend to hear. सुनने को मिलते हैं। But I want to tell you लेकिन मैं आपसे कहना this चाहूँगा morning, इस सवेरे के वक्त nothing is permanent in this life. इस जीवन में कोई भी बात या कोई भी चीज स्थायी नहीं है। If you are going through a bad time, अगर आप बुरे समय से गुजर रहे हैं that bad time must pass away. तो ये बुरा समय जो है वो निकल जाएगा। God shall surely bring in, usher in the good times in your life. आपके जीवन में परमेश्वर उन अच्छे समयों को निश्चय ही लाएंगे, Because He is good, क्योंकि प्रभु भले हैं, He is वो faithful, विश्वास He योग्य is है, wonderful, वो अद्भुत He है, is awesome, वो अद्भुत He is है, excellent, वो उत्तम He है। has you in His और mind. देखिए उनके मन में आप हो। Psalmist says something wonderfully. भजन संहिता लिखने वाला कुछ सुंदर लिखता है। Psalms 34 verse 17, 18 and say, verse 17 and 18 says like this. भजन संहिता 34 17 और 18। The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। This morning with this particular truth in your heart and minds, और इस सवेरे के वक्त ये सत्य को अपने मनों में, अपने हृदयों में रखते हुए I want us to set our sight on the Lord Almighty. हम चाहते हैं कि हम अपनी दृष्टि को, अपने नजर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाएं। Invite His presence in your midst, आपके मध्य में उनकी उपस्थिति की मांग करें, so that not any man but He may minister to us in the name of Jesus ताकि कोई Christ. मनुष्य नहीं लेकिन परमेश्वर स्वयं हमारी सेवकाई करे यीशु मसीह This के नाम morning, से। before we go into anything else, इस सवेरे के वक्त आगे बढ़ने से I पहले want us to pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद We देते glorify हैं, you. हम आपको महिमा देते We हैं, exalt your हम magnificent आपके name, नाम Lord. को ऊंचा उठाते We हैं। say there is no one like प्रभु जी you. हम ये कहते हैं आप जैसा कोई नहीं We है। thank you for the word of edification that you've given us, O Lord. प्रभु जी जो वचन आपने भेजा हमको बनाने के लिए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते You हैं। said that nothing is permanent. आपने कहा कि कोई भी बात स्थायी नहीं है। If we are moving, we are passing through some bad times, O Lord. अगर हमारे जीवनों में बुरा समय है, Lord, those bad times shall surely pass away and make way for the good to come in our life, ये O Father. बुरे समय परमेश्वर निकल जाएंगे, परमेश्वर और अच्छे समय हमारे जीवन में आएंगे, Because you are a God who hears the cry of your children. क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर है जो अपने लोगों की दुहाई को सुनते हैं। You will surely usher us into something greater, Father. परमेश्वर निश्चय ही आप हमको वो महान बातों में ले आएंगे। Father, with this understanding, पिता ये समझ के even साथ as we set our sight on you, जैसे हम अपने नजर को आपकी ओर लगाते even हैं, as we hearken our ears to hear from you, जैसे हम अपने कानों को आपसे सुनने के लिए लगाते this हैं, morning through everything that we ever do, minister to us in the name of इस सवेरे के Jesus. वक्त जो कुछ भी हम करें हमारी सेवकाई कीजिएगा उसके जरिए यीशु मसीह We के नाम thank you, से। Father. पिता हम आपको धन्यवाद We देते glorify you, हैं, हम Master. आपको महिमा देते हैं, Exalt your हम आपके magnificent नाम को name. ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' matchless and यीशु के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। My brothers and my मेरे भाइयों, मेरी sisters, बहनों, before we go into the word, वचन में जाने से पहले as usual, जैसे हम हमेशा I want करते us to हैं, spend some quality time in worshiping the Lord. अच्छा समय हम परमेश्वर की आराधना में Hope बिताएंगे। you're ready for that. मेरा विश्वास है कि आप इसके लिए तैयार हो। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी
प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। कैसे करूं मैं तेरी महिमा, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने में बैठो तेरी बातें, कागज में ना समान। और एक बार, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने में बैठो तेरी बातें, कागज में ना समान। आश्चर्य आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। ओ किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। और एक बार, किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। ओ तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान। ओ आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। आश्चर्य आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा। धन्यवाद धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते रहना चाहते हैं, हम आप में बने रहना चाहते हैं, हम थकना नहीं चाहते हैं परमेश्वर। Lord, we don't want to get tired, God. प्रभु, हमारा विश्वास हम आप में बरकरार रखना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद, हम थकेंगे नहीं प्रभु, हम थकेंगे नहीं प्रभु, हम आप में डट कर बने रहेंगे परमेश्वर। ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं। थक ना जाओ प्रभु,
जिंदगी में कभी जब तक है जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। ओ मैं थक ना जाऊं साथ में हम गाएंगे प्रभु, कि प्रभु जी हम थक न इस जाएं। जिंदगी में प्रभु, जब तक जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। ओ मैं थक ना जाऊं हो इस जिंदगी में, जब तक है जान, जब तक है जान है प्रभु, संग तेरे रह। साथ में गाएंगे महिमा, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा, आपकी ओ महिमा हो तेरी, महिमा राजा यीशु आपका महिमा, तेरी ना महिमा, ना 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 ना, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। जब तक ये जान है प्रभु, इस जिंदगी में प्रभु, हो जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। Father, we thank you. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you that you're merciful. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप दयालु हैं, Thank you that you're gracious, Lord. अनुग्रही हैं आप। Thank you, Lord, that you're a good and an amazing God, O Lord. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप भले हैं और अद्भुत परमेश्वर हैं। This morning we come unto thy throne of इस grace. सवेरे के वक्त हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष आते हैं। Lord, we do not want to get tired, O प्रभु Lord. जी हम थकना नहीं चाहते हैं। We just want to set a sight on you. परमेश्वर हम अपनी नजर को आप पर रखे We रहना want चाहते हैं। to set a sight on you, Father. हम अपनी नजर को आप पर रखे रहना Even चाहते as we हैं। set our sight at Jehovah, जैसे हम अपनी नजर को आप पर रखे hold रहते our हैं। hands and take us to our destination in the name of परमेश्वर Jesus. हमारे हाथों को थाम कर उस ध्येय उस लक्ष्य में आप हमको ले Father, जाइएगा it मसीह is, के नाम से। it is you who have set this course, O Lord. पिता आप ही ने परमेश्वर ये मार्ग को तैयार किया है। It is you who have asked us to get onto this course, O परमेश्वर Father. आप ही ने हमको इस रास्ते पर लाया It है। is your will, O Father, that we be on this course, O ये Lord. आपकी इच्छा है कि हम इस मार्ग पर रहे। Even as we get onto the course, O Daddy, जैसे हम इस मार्ग पर आगे चलते हैं, Lord, that you hold our hands प्रभु जी आप हमारे हाथों को and थाम lead कर us to the destination in the name of परमेश्वर Jesus. हमारी अगुवाई कीजिएगा उस लक्ष्य में, उस ध्येय में यीशु के नाम We से। thank you, Father. पिता हम आपको धन्यवाद Glorify देते you, हैं। Master. हम आपको महिमा देते Exalt your हैं। हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते There is हैं। no one like you. प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं In है। Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and और precious मूल्यवान नाम name, से we make this हम प्रार्थना prayer. करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, you and I are in this course आप और हम ये चलन में है, चाल में है, not in our own will, हमारे खुद की इच्छा से नहीं, because He has chosen you and me, क्योंकि परमेश्वर ने हमको और आपको चुना हुआ है, because He has set us on this course. क्योंकि उन्होंने ही इस मार्ग पर हमको रखा है That चलने के is लिए। why we are on it. इसीलिए हम इस मार्ग में चल रहे हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन The लीजिएगा। one who has began good work in you जिस परमेश्वर ने वो भले कामों की शुरुआत हमारे जीवन में is की है, able to bring it to completion
to His glory in the name वो of Jesus. सक्षम है कि हम इस चलन को पूरा करें उनकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम In से। spite of every situations and the circumstances that you may be going through, आपके जीवन में जो भी स्थिति जो भी परिस्थिति है उसके बावजूद this morning have this assurance deep down in your heart इस सवेरे के वक्त आप इस विश्वास को अपने हृदय में रखिएगा that the Lord Almighty is walking with कि you. परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में The चलते हैं। Lord Almighty is protecting you, preserving you, and making sure that you get your destination वो in the आपको name of Jesus बचाए Christ. रखते हैं, वो अपनी नजर आप पर बनाए रखते हैं और ये निश्चय कर रहे हैं कि आप अपने ध्येय अपने लक्ष्य में पहुंचे यीशु मसीह के नाम से। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, without wasting any time, समय न गवाते I हुए want us to quickly bring our attention back to the theme of this particular month. इस महीने के शीर्षक पर आइए अपने ध्यान को हम लगाएंगे। It's a very beautiful theme. बहुत ही सुंदर शीर्षक है, Whoever understands this particular theme जो कोई भी शीर्षक को समझ लेता and है allow the Lord to work in us, और होने देता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य our करे, lives shall not remain the same in the name of Jesus हमारा Christ. जीवन निश्चय ही बदल जाएगा, वैसे नहीं रहेगा यीशु के नाम से। Transformation shall be a portion in the name of Jesus परिवर्तन Christ. हमारा भाग होगा यीशु मसीह के नाम What से। is the theme for this particular month? इस महीने का शीर्षक क्या The है? theme for this month is lift up your heads, O you gates. इस महीने का शीर्षक है हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो। Hallelujah. Hallelujah. Where did we get this particular theme? ये शीर्षक कहाँ से मिला है? This particular theme comes from Psalm 24. ये शीर्षक जो है भजन संहिता 24 में दिखाई पड़ता है। Verse 7 downwards, you can see it repeatedly said and a chorus added to it. और 7वें वाक्य से आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे बार बार इसका उल्लेख है। We thank the Lord from past 2 weeks we extensively looking at this particular psalm. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पिछले 2 हफ्तों से हम इस भजन संहिता को देख रहे हैं। This morning extensively the Lord want to touch us and bring His mind and heart to us in the name of Jesus और इस Christ. सवेरे के वक्त भी परमेश्वर हमारे अपने हृदय को और अपने मन को हमारे सामने प्रकट करना चाहते This हैं। morning I want to read this entire psalm to each one of us ये पूरे भजन संहिता को मैं पढ़ना चाहूंगा इस सवेरे के वक्त, so that you may know what we're talking about. ताकि हम सभी जान ले कि हम किसके बारे में बात कर रहे I'm हैं। going to read for us from the NKJ version, and it says, "The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein." Verse 2, "For He has founded it upon the seas and established it upon the waters." Verse 3, "Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place?" Verse 4, "He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted his soul to an idol, nor sworn deceitfully." Verse 5, "He shall receive blessing from the Lord and righteousness and from the God of his salvation." Verse 6, very beautiful. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. Verse 7, this is where our theme comes from. It says, "Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in." Verse 8, "Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle." Verse 9, "Lift up your heads, O you gates, lift up your everlasting doors, and the King of glory shall come in." Verse 10 says, "Who is the King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory." भजन संहिता 24 पूरी भजन संहिता को मैं पढ़ रही हूँ। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन खड़ा रह सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले यहोवा परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। 7वां वाक्य और यहाँ से ही शीर्षक आता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो
हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा We है। bless the reading of this particular psalm in the name of Jesus. हम इन वाक्यों के पठन को आशीषित करते हैं Shall यीशु we मसीह just के नाम से। quickly bow down our heads in prayer? आइए जल्द से हम अपनी आंखों को मूंद कर प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते Lord, हैं। today, this morning, we render ourselves into your hands. पिता इस सवेरे के वक्त हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते Even हैं। as we open our mouth, O Lord, जैसे हम अपने मुखों को खोलते हैं, let your oracles unhinderedly flow out of our tongue. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके शब्द बिना रोक टोक के हमारे जबान से बहने Let those पाए। living waters minister to every soul, O Lord. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जीवित जल हर एक प्राण की सेवकाई कर We पाए। decrease that you may हम increase. घट जाते हैं ताकि आप बढ़ जाएं। Speak unto us this morning in the name of Jesus हमसे Christ. बात करिएगा इस सवेरे के वक्त यीशु मसीह के नाम Thank से। you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' matchless and यीशु precious के अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी if बहनों, you read the 22, 21, 22, 23 and 24, Psalm अगर- 21, 22, 23, 24. अगर आप भजन संहिता 21, 22, 23, 24 पढ़े, These are the group of psalms written by David. ये ऐसे भजन संहिता है 22, 23, 24 क्षमा कीजिए, ऐसे भजन संहिता है जिनको दाविद ने लिखा हुआ है। And these psalms are called as ascension psalms. और इन भजन संहिताओं को एसेंशन भजन संहिता कहा Why गया है। it is called as an ascension psalm? ऐसा क्यों कहा गया है? If you understand that Jerusalem is on a hilly place, अगर आप समझे तो यरूशलेम जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में है। whoever want to get on to Jerusalem, जो कोई भी यरूशलेम जाना चाहता they था, have to climb a hill. उनको जो है पहाड़ चढ़ना पड़ता And on था। the top of the hill in a plateau is where Jerusalem और is. पहाड़ पर जहाँ पे एक समतल जगह थी वो यरूशलेम था। And this particular psalm for that और matter ये भजन संहिता 24 was written by David on a very particular और occasion. दाऊद ने इस भजन संहिता को लिखा था और संदर्भ जो है बहुत ही खास था। The Ark of the Covenant was in the house of Obed Edom. वाचा का संदूक जो है ओबेद इदोम के घर में था। 3 months had already passed by. 3 महीने बीत चुके थे And David was interested in bringing this ark to the city of David, that is और Jerusalem. दाऊद जो है चाहते थे कि यरूशलेम में दाऊद के शहर में ये वाचा के संदूक को लाया जाए। Because of his carelessness, क्योंकि लापरवाही दाऊद ने बरती। 3 months back, 3 महीने पहले they had a tragedy. तो वहां पे एक दुर्घटना घट गई। They had a tragedy. वहां पे एक दुर्घटना हो And they गई lost one of the Levites. और वहां पे एक लेवी की मृत्यु हो गई। And here David sits down and pens down a beautiful psalm. और यहाँ पे दाऊद जो है वो एक सुंदर भजन संहिता को लिख रहे हैं। And this particular psalm ministered to those people who were bringing the ark to the Jerusalem. और ये भजन संहिता जो है उन लोगों की सेवकाई कर रही थी जो लोग वाचा के संदूक को यरूशलेम में लेकर आ रहे थे। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, this was then written by David. ये भजन संहिता तब वो संदर्भ में दाऊद ने लिखा था। And these 3 psalms are extensively used by the pilgrims who would come from other places apart from Jerusalem. Whenever they would enter, as they would enter the hills, they would sing these songs with great joy that they would enter Jerusalem. और ये भजन संहिता 22, 23 और 24 जो है जो विदेशी लोग यात्रा कर रहे थे या यात्री लोग जो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, ये यात्री लोग जो है इन गीतों को गाकर जो है यरूशलेम की तरफ जाते थे। Please understand something here. यहाँ पे आप समझ लीजिएगा There is a twofold thing that David was speaking in this place. यहाँ पे 2 तरह की बातों को दाऊद बोल रहे थे। Number one thing David was saying, पहली बात जो दाऊद बोल रहे थे who can ascend into the hill of the Lord? कि परमेश्वर के उस पर्वत पर कौन आ सकता है। When he was saying that, he was reminding the pilgrims, listen, not everybody can enter into the presence of और God. देखिए जब दाऊद ये लिख रहा था कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, तो वो उन यात्रियों को याद दिला रहा
कहा था कि सारे जन जो है पहाड़ पर परमेश्वर के चढ़ नहीं सकते, उनकी उपस्थिति में आ नहीं He was सकते हैं। forcing the pilgrims to reflect and introspect and see who they are. मानो वो यात्रियों को विवश कर रहे थे कि खुद को जांच कर देख ले कि हकीकत में वो कौन है। In verse 4, he answers his own question. और चौथे वाक्य में, भजन संहिता के 24वें अध्याय के चौथे वाक्य में वो अपने प्रश्न का जवाब देता He है। says, who has a clean hands जिसके हाथ बिना दोष के हो, and pure heart, जिसका मन शुद्ध हो, who has not lifted up his soul to an idol, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों में नहीं लगाया nor है, sworn deceitfully. और जिसने कपट से शपथ नहीं खाई है। These are the 4 conditions for somebody to ascend into the hill of the Lord. जरूरी है कि ये 4 बातें उन लोगों के जीवन में हो जो यहोवा के पर्वत पर चढ़ना चाहते My हैं। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, David is challenging people. दाऊद लोगों को यहाँ पे चुनौती दे रहे हैं, David is reminding people, लोगों को याद भी दिला रहे हैं, as you're entering into the hill of Jerusalem, जैसे आप यरूशलेम के पर्वत को चढ़ रहे हैं, reflect and see whether you are that person who have these 4 prerequisites. जांच कर देख लीजिएगा कि क्या आप वो व्यक्ति हैं जिनके जीवनों में ये गुण हैं। And this is the first thing that he meant. और ये पहली बात है जो उन्होंने कहा। Second thing, that he is prophetically speaking something very powerful. दूसरी बात हम देखते हैं कि इस भजन संहिता में नबूवत करते हुए बहुत ही सामर्थी बात को दाऊद यहाँ पे बोल रहे हैं। David the prophet is in action, if you understand it. अगर आप समझ लीजिएगा तो दाऊद जो भविष्यवक्ता है वो यहाँ पे देखिए कार्यशील है। Here the verse 4 is talking about Messiah. और देखिए यहाँ पे चौथे वाक्य में मसीहा के बारे में उल्लेख है। This particular psalm can be termed as messianic psalm. इस गीत को मसीहा का गीत जो है कहा जा सकता है। If you say that who can enter into the hill of the Lord, अगर आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर के या यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, David is not talking about himself, दाऊद जो है वो अपने बारे में बात नहीं कर रहा because है, those 4 requisites David is talking about he did not possess. क्योंकि ये जो 4 जरूरतों के बारे में दाऊद बता रहे हैं उनमें वो जरूरतें नहीं थी। His hands were not clean, मतलब उनमें वो जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि Because- दाऊद के हाथ साफ नहीं थे, because his hands were blood stained with a murder. क्योंकि उनके हाथ जो है लहू से भरे हुए थे। His heart was not pure because he had lusted after a woman and he had committed adultery. दाऊद का हृदय जो है वो खरा नहीं था, वो शुद्ध नहीं था, क्योंकि उसने जो है पराई स्त्री की लालसा की थी और उसके पीछे हो लिया था। His soul was not, rather his soul was lifted to pride. और देखेंगे तो दाऊद का हृदय जो है घमंड से भरा था, I repeat again, his soul was lifted to an idol called pride. और उसका प्राण जो है ऐसे मूर्ति के प्रति जो है उठा हुआ था जो घमंड है। In his pride, he had gone out and he had counted the Israel. He had taken a census of the Israel. उसके घमंड में ही देखिए पवित्र शास्त्र में उल्लेख है कि इज़राइल के सेना की गिनती उसने की थी। My brothers and my sisters, David could not say that he was not deceitful. मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद अपने आप को लेकर ये कह नहीं सकता था कि उसमें कोई कपट नहीं था। All these 4 things that he is talking about, ये चौथे वाक्य में 4 बातें जो दाऊद बोल रहे हैं, he had it in him. और देखिए ये सारी बातें दाऊद में थी, Because he had it in him, क्योंकि ये सारी बातें दाऊद में he थी, couldn't say that. वो कह नहीं पा रहा था। But there is one that who could fits into this particular bill. लेकिन एक है जो जिनके जीवन में ये बातें नहीं हैं, Concerning him, that he is prophetically pronouncing और here. उन्हीं के बारे में जो है नबूवत करते हुए दाऊद ये बोल रहे हैं। Who is it? वो कौन व्यक्ति That है? one is no one other than the Messiah, Jesus Christ ये himself. व्यक्ति और कोई नहीं है लेकिन मसीहा है जिनका नाम नजरती यीशु मसीह है। His hands were clean. उनके हाथ बिना दोष के थे, His heart was pure. उनका हृदय शुद्ध था, His heart was not, his mind was not, his soul was not lifted to an idol. उनका प्राण जो है किसी मूर्ति की ओर नहीं था, There was no deceit that was ever found in him. और हमारे प्रभु में कोई कपट नहीं था। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, he was prophetically talking about Messiah. यहाँ पे हम देखते हैं इस भजन संहिता में दाऊद भविष्यवाणी करते हुए नबूवत करते हुए मसीहा के बारे में Who बात was कर रहा है, supposed to be coming from the loins of David जो himself. दाऊद के वंशावली से आने वाले थे। Praise God. And
further के नाम down की in स्तुति verse हो। 5 he says, 5वें वाक्य में वो कहते हैं, such one shall receive blessing from the Lord और ऐसे लोग जो है परमेश्वर से आशीषों को पाएंगे and righteousness from God of his salvation. और परमेश्वर उन्हीं को धर्मी My ठहराएंगे। brothers and my sisters, here verse 6 talks about you and me. यहाँ पे छठा वाक्य जो है देखिए हमारे और आपके बारे में कहा गया है। This is Jacob, ये याकूब हैं, the generation of those who seek him, who seek your face. याकूब वंशी ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं जो उसके दर्शन के खोजी हैं। I want you to be encouraged this morning. इस सवेरे के वक्त मैं चाहता हूं कि आप प्रोत्साहित हो Verse जाएं। 6 is talking about you. और देखिए छठा वाक्य आपके बारे में Your बताता है, name is mentioned there. आपका नाम वहां पे लिखा You हुआ है, can put your name there. आप वहां पे अपना नाम लिख सकते This हैं। is Jacob. ये याकूब है, You are the Jacob. आप वो याकूब हो। In the Lord Jesus Christ, you are the Jacob. और प्रभु यीशु मसीह में आप वो याकूब You हो। are the generation of those who seek him and his face. आप ऐसी पीढ़ी हो जो उनको खोजते हैं और उनके मुख को खोजते हैं। My brothers and my sisters, when you are seeking him and his face, जब हाँ आप जो है उनको खोज रहे हैं, उनके दर्शन के खोजी हैं, and there comes a command. और फिर वहां पे हम देखते हैं यहाँ पे एक आज्ञा आती है What does it say? That's where our theme is hidden. और शीर्षक यहाँ पे है, It says, lift up your heads, O you gates, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, and be lifted up, you everlasting हे doors. सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, And the King of glory shall come in. क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, I want to tell you that you and I have doors and gates within us. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर जो है फाटक हैं, हमारे अंदर जो है द्वार हैं। Before I come to the gates and the doors that are inside us, और हमारे अंदर जो फाटक और द्वार हैं वो बोलने से पहले, बताने से पहले let me briefly explain what are these. मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि ये क्या है द्वार और A फाटक। gate is nothing else but a demarcation of a premise. और देखिए फाटक और कुछ नहीं है, लेकिन फाटक जो है वो अलग करती है, मतलब क्षेत्रों को अलग करती है। I repeat again, a gate is nothing else but a demarcation of a premise. और देखिए फाटक कुछ नहीं है, लेकिन एक भेद करती है या अलगाव करती है दूसरे, मतलब अगले जमीन से। When you set a gate, जब आप फाटक को रखते हैं या लगाते you हैं, are saying that this is my premise, you cannot enter, and if you enter, you're trespassing into my premise. फाटक अगर लगाते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी जगह है, अगर तुम यहाँ पे आते हो तो तुम जो है घुसपैठिया हो। That is what a gate is all और about. देखिए फाटक जो है इस बात को दर्शाता है। And secondly, it talks about the door. और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि द्वारों के बारे में उल्लेख है। Every house has a door. हर एक घर का दरवाजा होता है, And as much as possible, we all secure our doors, make it sure that it is the strongest portion, because nobody should just walk into it anyhow. और जितना हो सके हम ये निश्चय कर लेते हैं कि हमारे घरों के द्वार जो है वो बिल्कुल ही एकदम ही स्ट्रांग हो, अच्छे हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आ जाए ऐसे ही। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी you बहनों, know what is a gate is all आप about. जानते हैं कि फाटक क्या You है, know what is a gate, door is all about. दरवाजा क्या है, आप जानते हैं। Similarly, you have gates within your soul. उसी प्रकार से है, देखिए फाटक हैं आपके प्राण में, Within your spirit there is a door. आपके आत्मा का दरवाजा है। If you open the gates to the wrong things, अगर आप जो है फाटकों को गलत चीजों के लिए खोल if देते you हैं, open the doors to the wrong things, अगर आप दरवाजों को गलत चीजों के लिए खोल देते हैं something bad can happen. तो बुरा हो सकता है। But if you open your gates and the door to the right things, लेकिन यदि आप अपने जीवन के फाटकों को, दरवाजों को सही चीजों के लिए खोलते हैं, something amazing can take place in तो your life. आपके जीवनों में कुछ अद्भुत हो सकता है। I believe this morning मेरा विश्वास है ये सवेरे के the वक्त Lord Jesus Christ of Nazareth stood at your door and knocked at your door. कि नजरती यीशु मसीह जो है आपके द्वार पर खड़े रहे हैं और उन्होंने खटखटाया।
You acknowledged his voice. आपने उनकी आवाज को सुन लिया, You recognized that he is at the door. आप समझ गए कि यीशु मसीह द्वार पर खड़े And हैं you opened the door willingly. और आपने स्वेच्छा से उस दरवाजे को खोला And you received him inside. और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा। That is why that you are a Christian and you are a chosen और one. इसीलिए आप जो है मसीह जन हैं और आप चुने हुए जन हैं। But at the same time, लेकिन इसी समय it's quite possible that you have also received something wrong. ये भी हो सकता है कि आपने गलत चीजों को या गलत चीजों के लिए अपने दरवाजे को खोला है And because of that, you're going through what you're going through. और उसकी वजह से ही आपके जीवन में जो हो रहा है वो हो रहा है। This morning, I want us to understand few इस things. सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि चंद बातों को हम समझ ले। There are 3 great gates at the doors that we can open. देखिए 3 दरवाजे हैं, 3 फाटकें हैं जिनको हम खोल सकते हैं अपने जीवन Number में। 1, I'm going to talk about this particular gate. और पहली बात जो है मैं ये गेट के बारे में बात करने वाला Number हूँ। 1 is the physical gate. एक जो है शारीरिक गेट है, फाटक Number है। 2 is the material gate. दूसरा जो फाटक है वो आर्थिक फाटक है। Number 3 is the spiritual और gate. तीसरा जो है वो आत्मिक फाटक है। God gives me the grace next 3 weeks. I'm going to extensively talk about these 3 gates. और प्रभु अनुग्रह देते हैं तो अगले 3 हफ्ते जो है मैं इन फाटकों के बारे में बात करूंगा। May the Lord Almighty help you to open up all that is for right and shut down for all that is wrong in the name of Jesus Christ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा होने दे कि आप जो है सही बातों के लिए अपने जीवन का दरवाजा खोले या फाटकों को खोले, लेकिन गलत बातों के लिए जो है आप अपने जीवनों का दरवाजा और फाटक जो है बंद कर दे। This morning let's look at what is that physical gate. और इस सवेरे के वक्त आइए देखते हैं कि शारीरिक वो दरवाजा फाटक क्या है। My brothers and my sisters, there is a pandemic on the sprawl. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, महामारी चल रही है And this pandemic is attacking even the children of God. और देखिए ये महामारी जो है परमेश्वर के बच्चों पर भी आक्रमण कर रही है। Even when the pandemic was not there, जब ये महामारी नहीं थी, the children of God are suffering as much as the children of the world. परमेश्वर के बच्चे जो है वो भी वही प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं जो दुनिया के लोग झेलते हैं। When the word of God says जब वचन में लिखा हुआ है that he is a healer, कि वो चंगाई दाता है, in him there is healing, मसीह में जो है चंगाई हमारा भाग we है। all get excited and we shout a hallelujah हम to it. बहुत ही खुश हो जाते हैं, हालेलुया भी बोलते हैं। But in spite of shouting a लेकिन hallelujah, हालेलुया बोलने के बावजूद, in spite of agreeing with that fact, उस हकीकत के साथ सहमत होने के बावजूद we come under the power of the enemy. शत्रु के चंगुल में हम आ जाते We हैं। come under the power of the diseases. We come under the power of, discomforts. हम रोग बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। Is it right for us? क्या ऐसा होना चाहिए? If that happens, why it is happening? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? What are the wrong doors that we are opening? कौन से गलत दरवाजों को हमने शायद खोला What are है? the wrong gates that we are opening? कौन से गलत फाटकों को हमने खोला That's है? exactly what the Lord Almighty want to talk to us this morning. वही परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं इस सवेरे के वक्त। For us to understand it better, समझने के लिए बेहतरीन I है। want us to quickly open our Bibles to Luke chapter 13. हम चाहते हैं कि जल्द से हम अपने पवित्र शास्त्र में देखें लूका की किताब 13वां We're अध्याय। going to look at verse 10 to verse 13. हम 10 से 13 देखेंगे। It's a very popular place. लूका 13 10 से 13 We all have learned from the life of this woman. और जाना माना जगह है, हम स्त्री के जीवन से सीखे हैं पहले This भी। woman is called as woman with an infirmity. और ये स्त्री जो है वो दुर्बल स्त्री थी। Praise God. परमेश्वर के नाम की I स्तुति want हो। us to look at those verses. Luke chapter 13 verse 10 to 13. I'm going to read it for us. लूका का किताब 13वां अध्याय 10 से 13। It says, now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Verse 11, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could no way raise herself up. Verse 12, and when Jesus saw her, he called her to him and said to her, woman, you're loosed from your infirmity. Verse 13, and he laid his hand on her and immediately she was made straight and glorified God. सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी
और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधा या सीधी नहीं हो पा रही थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। This woman was a Jewish woman. ये स्त्री जो है यहूदी स्त्री थी। She knew the oracles of God. ये स्त्री जो है परमेश्वर की व्यवस्था को भली भांति She was a जानती थी। keeper of the law of Moses. ये मूसा की व्यवस्था को रखने वाली स्त्री She थी। confessed Jehovah as God of her life. यहोवा को अपने जीवन का प्रभु मानती थी। She was a devout because she was found in the synagogue. That means to say she was regular to the synagogue. ये एक भक्त थी, वो आराधनालय में पाई गई थी। इसका मतलब है वो आराधनालय में जाने की आदी थी। In spite of every good thing that you see in this और place, यहाँ पे ये स्त्री को लेकर अच्छी बातों को देखने के बावजूद her life was bent like और this. देखिए हम देखते हैं कि ये स्त्री का जीवन जो है पूरी रीति से झुका हुआ था। ये कुबड़ी थी। She was not bent like this. वो इस तरह से झुकी हुई नहीं थी। She was not bent like इस this. तरह से झुकी हुई नहीं She थी। was bent like this. पूरी रीति से झुकी हुई थी। Some of the versions say that she was doubly bent. कुछ अंग्रेजी वर्जन्स में लिखा हुआ है कि वो पूरी रीति से डबली बेंट मतलब पूरी रीति से झुकी हुई थी। What is the meaning of doubly bent? डबली बेंट का क्या मतलब है? That means to say as though that she is a piece of cloth, one is upon other. Similarly, her upper portion of the body was almost in parallel to the lower portion of her body. डबली बेंट का मतलब क्या है? मानो एक कपड़ा है और कपड़ा जो है अगर उसको हम फोल्ड करते हैं दो भागों में, अगर इस तरह से अगर फोल्ड करते हैं तो उस प्रकार से जो है ये स्त्री का शरीर हो गया था। मतलब पूरी रीति से वो झुक गई थी, कुबड़ी हो गई थी। She was a Jew. ये एक यहूदी थी। She had God. परमेश्वर थे इनके She जीवन में। had the promises of the Most High. यहोवा के वादे भी थे इनके जीवन में। In spite of that, that was her case. इसके बावजूद देखिए इसकी हालत इस तरह से थी। My brothers and my sisters, verse 11 says something very amazing. 11वें वाक्य में कुछ सुंदर लिखा हुआ है। It says, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity. लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। Please underline, please highlight that particular thing called spirit of infirmity. यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कीजिएगा, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। Mind you, it was a spirit. आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी। Mind you, it did not birth inside her body. और देखिए ये इसके शरीर में जन्म नहीं लिया था। Mind you, it was sown by the enemy from और outside. देखिए ये बाहर से अंदर इनके डाला गया था। Praise God. And this spirit of infirmity और ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा was dwelling in her for 18 years. ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा इस स्त्री में 18 साल से थी। Not 5 years, not 10 years, not 15 years, 18 good years. Imagine that's almost a child growing up to become mature. 5 साल नहीं, 8 साल नहीं, 10 साल नहीं, 18 साल जो है। आप देखिए कि ये दुष्ट आत्मा जो है इस स्त्री से लगी हुई थी। Imagine her plight. आप इसकी अवस्था को थोड़ा सोच कर She देखिए। could not praise God with her head held high. वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रही थी अपने सिर को ऊंचा कर She could not worship God with her head held high. वो परमेश्वर की आराधना भी अपने सिर को ऊंचा कर नहीं कर पाती She थी। could not claim the promises of God with her head held high. और वो परमेश्वर के वादों को भी अपने जीवन में ले नहीं पा रही थी अपने सिर को ऊंचा कर। She was doubly bent. वो पूरी तरह से झुकी हुई थी। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, it was because that she had infirmity, spirit of infirmity. ये इसलिए था क्योंकि दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसके जीवन को लगी थी। Praise God. And Jesus saw her and Jesus called her to him. And he said, he commanded, women, you are loosed from your infirmity. यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा,
हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। Some of the versions say that you're loose from that spirit of infirmity. और कुछ अंग्रेजी वर्जन्स में लिखा हुआ है कि ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से छूट गई है तू। And verse 13 says, and he laid his hands on her. और 13वें वाक्य में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उन्होंने अपना हाथ रखे उस पर। Listen to this, he just laid his hands on her. सिर्फ हाथ रखे यीशु मसीह ने, And she was made straight and glorified God. और वो जो है सीधी हो गई तुरंत और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, this is an amazing miracle. ये देखिए ये आश्चर्यजनक काम है। And through this amazing miracle that the Lord Almighty want to teach you and me a lesson during these times of pandemic. और ये आश्चर्यजनक जो प्रसंग है, इस प्रसंग के जरिए ये महामारी के समय परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। Remember, it is the spirit of infirmity. आप याद रखिएगा कि ये दुर्बल करने वाली आत्मा है, दुष्ट आत्मा। Remember, it is not inside you, it is from outside. अब आप जो है इस बात की नोंद लीजिएगा कि ये दुष्ट आत्मा जो है अंदर से उत्पन्न नहीं हुई थी, ये बाहर से आई थी, लगी थी उसको। Remember that it has been sown by the enemy Satan. और ये भी याद रखिएगा, नोंद लीजिएगा कि शत्रु ने जो है इसको बोया है, ये दुष्ट आत्मा को भेजा है इसके जीवन को I लगने want के to लिए। quickly take down 3 things this morning. इस सवेरे के वक्त 3 बातें आप देख लीजिएगा। That explains to you, that tells you how you as a child of God, we as children of God allow the spirit of infirmity to enter inside us. कि इससे पता चलेगा कि कैसे हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम जो है ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में प्रवेश या अपने जीवन में आने देते हैं। Please understand this. आप समझ लीजिएगा, If you don't give an entry to the spirit of infirmity, it has no rights over you, it cannot enter inside you. और देखिए अगर आप ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा को अनुमति नहीं देते हैं कि आपके अंदर आए या आपको लगे रहे, तो ये दुष्ट आत्मा जो है आपको लग नहीं सकती, आपको चिपक नहीं सकती, आपके अंदर आ नहीं सकती। It enters inside you because that you allow it to enter. ये दुष्ट आत्मा, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा जो है किसी के जीवन में प्रवेश करती है क्योंकि वो व्यक्ति जो है होने देता है कि वो उसके जीवन में प्रवेश करे। You ask me how did I allow it to enter? आप जो है मुझको प्रश्न अगर पूछेंगे कि कैसे मैंने होने दिया कि ये अंदर आ जाए, My brothers and my sisters, through 3 things that you have allowed the spirit of infirmity to enter inside. मेरे भाइयों मेरी बहनों 3 बातों के जरिए आपने होने दिया है कि ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा जो है वो प्रवेश करे। When the enemy attacks you, जब शत्रु जो है आक्रमण करता when है, the enemy intends to send a spirit to you that is from the pit of hell, जब शत्रु जो है वो योजना बनाता है दुष्ट आत्मा को भेजने के लिए, number 1 thing that he does is to send fear into your heart. पहली बात जो शत्रु करता है वो आपके हृदय में भय को डालता है। That is why I keep on telling you, इसीलिए मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, except to God no other thing and none that you should fear. परमेश्वर को छोड़कर किसी का भय मत मानिएगा। I repeat it again. फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, Anything that unsettles you, that is coming from the pit of hell, और जो भी बात आपको गड़बड़ा देती है और वो बात अगर नरक के खाई से आ रही है, if you start beginning to feel an concern or a fear comes into you, अगर आप जो है उसको लेकर डर अगर आप में आ जाता है, that means to say that the enemy has already thrown a seed on you. इसका मतलब ये है कि अगर आप भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, इसका मतलब है शत्रु ने बीज को जो है फेंका है आपके How अंदर। will the fear develops? और कैसे भय जो है वो कैसे उत्पन्न होता How है, does the fear develop? वो डेवलप कैसे होता है? This fear develops through thoughts. और देखिए विचारों के जरिए One doubt, एक शंका का one बीज, thought एक विचार that is not backed by the Lord is sown into your heart. जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और वो विचार आपके मन में, आपके हृदय में बोया गया है। When you allow that fear, that fearful thought to develop inside you, और जब आप होने देते हैं कि ये भय को उत्पन्न करने वाला या भय को लाने वाला विचार जो है आपके अंदर जगह ले, my brothers and my sisters, that you are
are allowing the spirit of infirmity to enter inside तो you. फिर आप होने दे रहे हैं कि दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रवेश करे। 2 Timothy chapter 1 verse 7 says something very beautiful. दूसरे तिमुथियुस की किताब पहला अध्याय और 7वें वाक्य में कुछ सुंदर लिखा हुआ है। He says, for God has not given us the spirit of fear, लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, but of power and of love and of sound mind. पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी If है। you have the sound mind of God, अगर परमेश्वर की संयम की आत्मा आपके अंदर है, if you're somebody who's under the unction of the Most High, अगर आप जो है परमेश्वर के आड़ में हैं, you constantly read the scriptures, आप जो है निरंतर वचनों को पढ़ते हैं, you allow the word to minister to your heart, अगर आप ऐसा होने देते हैं कि निरंतर वचन जो है आपके हृदय की सेवकाई करे, you will not allow that fear to dwell inside you. तो आप होने नहीं देंगे कि भय जो है आप में जगह ले। Your sound mind that reasons along with the Lord, और देखिए आपका जो मन है, जो सही मन है, वो परमेश्वर से सहमत होता है। deflects every thought of fear that try to enter your mind. भय के हर एक विचार को जो है वो पूरी रीति से खदेड़ देता है या नस्त नाबूद कर देता है। When you don't allow the word to take over you, जब आप ऐसा होने नहीं देते हैं कि वचन आप पर हावी हो when you जाए, don't agree with the word of God, जब आप वचन के साथ में सहमत नहीं not होते हैं, align yourself with the word of जब आप God, अपने आप को वचन के अनुसार नहीं लगाते हैं, obviously that you will give in to the thoughts that are sown by the enemy, and that's what takes root in you. तो फिर ऐसा ही होगा कि आप जो है शत्रु के विचार पर ध्यान देंगे। अब जब शत्रु के विचार पर आप ध्यान देंगे तो शत्रु जो है आपके अंदर आने लगेगा। You know, anybody who allows a fear to come in, और देखिए जो कोई भी भय को होने देता है कि अपने अंदर आए, they have opened the gates to the house. और देखिए उन्होंने अपने घर के उन फाटकों को खोल दिया है। I repeat, you have opened the gates to the house called yourself, देखिए, your body, your life. आपके खुद के घर को, आपके देह के घर को, आपके जीवन के घर के दरवाजे को, फाटक को आपने खोल दिया है। Number two thing, दूसरी बात through which that spirit of infirmity can enter. जिसके जरिए जो है ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लग सकती है, आ सकती है। First, the enemy sows a thought into your mind. पहले तो शत्रु जो है मन में भय डालता I है। repeat again, he sows a thought into your mind, and the thought produces fear in your heart. और देखिए पहले तो शत्रु आपके मन में विचार को बोता है और वो शत्रु का विचार आपके हृदय में भय को लाता है। And then when that fear is developed, और फिर वो भय जब बढ़ने लग जाता है, when that seed has sprouted, जब वो शत्रु का बीज जो है वो उगने लगता है, when it has germinated and it has sprouted, जब वो उगने लगता है, वो फूटने लगता है, it sprouts with the confession of your mouth. फिर आगे चलकर जो है आप अपने मुंह से कबूली करने लग जाते हैं। I repeat again, it shows forth as a confession from your mouth. दिखाई पड़ता है क्योंकि फिर आप आगे चलकर जो है मुंह से बोलने लग जाते हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। How many of you always say, I have a headache, I have fever, my throat is not all right, I have this, I have that. आप में से कितने लोग ये बोलते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, मैं दुर्बल महसूस कर रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। You know, when you say that, जब आप इसको बोल देते हैं, listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, You are voicing the inner fears with the confession of the mouth. और देखिए आप जो है आपके अंदर जो भय है वो भय को जो है आप अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं। When you confess like that, जब आप अपने मुंह से इस तरीके की बात करते you हो, are opening the door to your house. और देखिए आप फिर अपने घर, अपने जीवन के घर का दरवाजा खोल देते हो। By allowing the fear, you open the gate of to the house. और भय को क्योंकि आपने जगह दी तो आपने
फाटक को खोल दिया। And when you confess that you opened even the door to your being. और जब आपने जो है कबूल की, तब आपने जो है अपने जीवन के दरवाजे को खोल दिया। Proverbs chapter 18 verse 21 says something very beautiful. नीति वचन की किताब में हम देखेंगे These- 18वां अध्याय और 21वां वाक्य। These are the regular verses. I'm just reading it to you that may minister to you and bring you out of every spirit of infirmity in the name of Jesus Christ. देखिए, ये वाक्यों को हमने पहले भी सुना है, बार बार हम इन वाक्यों को दोहराते हैं। ये वाक्य मैं आपके सामने फिर लाना चाहूंगा ताकि पवित्र आत्मा जो आपकी सेवकाई करे और दुर्बलता की दुष्ट आत्मा से आप छूट जाएं। Verse 21 of Proverbs chapter 18 says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लगाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। What you voice out, जो आप बोलते हैं, what you vocalize, जो आप बोलते हैं, has power to bring it to pass. और देखिए वो जो आपने बोला है उसमें सामर्थ्य है कि जो आप बोले हैं वो चीज हो जाए। Until you confessed जब तक कि आपने बोला नहीं, and said that I have a headache, जब तक कि आपने बोला नहीं था कि मेरा सर दर्द कर रहा है, the headache was still outside you. वो सर दर्द जो है आपके बाहर था, आपके moment दरवाजे के बाहर था। The moment you said that I have, लेकिन जब आपने कहा कि सर दर्द हो रहा है, that headache has entered inside you. वो सर दर्द जो है वो सर दर्द के लिए आपने दरवाजा खोला है और वो सर दर्द अंदर आ गया है। You know, I was talking to a lady, मैं एक स्त्री से बात कर रहा था, and this sister came to me and said कि pastor, initially I didn't want to wake up early in the morning. और ये बहन कह रही थी कि पासबान, शुरुआत में मैं जल्दी उठना नहीं चाहती थी सवेरे के You वक्त। know, I'm not an early morning person. मैं सवेरे जल्दी उठती नहीं हूँ, इस प्रकार की स्त्री मैं नहीं हूँ। After marriage, I was required to wake up early. विवाह के बाद जो है जरूरी पड़ जाता था कि मैं जल्दी उठूँ। To avoid that, उस चीज को अवॉइड करने के लिए I would say that I have a headache, I can't get up. मैं ये कहती कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं सकती हूँ। And then over the period of time that this thing that I kept on confessing became a reality in my और life. आगे चलकर ये जो मैं बोल रही थी बार बार, वो मेरे जीवन में एक हकीकत बन गया। You know what? She said this when the Lord exposed a few things about her. और उन्होंने इस बात को कहा जब परमेश्वर ने चंद बातों का खुलासा उनके सामने किया। Until then she had not opened her mouth to say these words. तब तक जो है उन्होंने ये शब्दों को बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला था। Please understand this. कृपा कर समझ लीजिए। When you confess and say that I have fever, when you confess and say that I have cold, when you confess and say I have a headache, that thing has already entered inside you. जब आप जो है ये बोलते हैं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप इन बातों को बोलते हैं कि मुझे बुखार है, दुर्बलता है, अगर आप बोलते हैं तो वो आपने उसके लिए द्वार खोल दिया है। So am I trying to kind of make you lie today? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप झूठ बोले? If you have a headache, how to deal with it? अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो कैसे आप डील करेंगे? You don't have to say I have. आपको ये नहीं कहना है कि मुझे है। Instead of that, word it differently. और उसके बजाय जो है आप अलग से बोले। And claim a promise that is attached in the word of और God. वचन में जो वादा है उस वादे को आप जो है क्लेम करें। You can say my head is aching, आप ये कह सकते हैं मेरा सर दर्द हो but रहा है, I am healed through his stripes in him, that I am perfect, and I reject everything that is coming from the pit of hell. आप ये कह सकते हैं मेरा सिर दर्द हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि उनके कोड़े खाने से मेरा सर दर्द जो है चंगा होता है, और मैं जो है आप वो वचन को ले लीजिएगा। You are speaking the truth आप सत्य को बोल रहे हैं and also backing the truth with the word of God and claiming the promise for healing. और आप जो है वचन को बोल रहे हैं, और वो सर दर्द के लिए जो है आप वो वादे को, वो वचन को जो है क्लेम कर रहे I हैं। am not saying that you have fever and you will not open your mouth to say that you have fever. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका अगर बुखार है तो आप ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत कहना कि बुखार है, उस तरह से नहीं कह रहा हूँ। Instead you say, instead of saying I have fever, लेकिन ये कहने के बजाय कि मुझे बुखार है, say I'm feeling feverish. आप ये कहना कि मुझे जो है महसूस हो रहा है, बुखार महसूस हो रहा But I है, claim my healing
from the cross of Calvary, लेकिन मैं अपनी चंगाई को लेता हूँ कलवरी क्रूस से। through the finished work on the cross of जो Calvary. यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर वो खत्म किया हुआ काम है, उसके जरिए जो है मैं अपने चंगाई को लेता I हूँ। claim my promise of healing. मैं वो चंगाई के वादे को मेरे जीवन के लिए ले लेता When हूँ। you term it differently, जब आप अलग रीति से बोलते हैं, भाषा को ध्यान देकर with the बोलते right हैं, understanding, सही समझ के साथ जब बोलते हैं, aligning your words with the word of God, आप अपने वचनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार लगाते हैं। aligning your thoughts with the thoughts and words of God, आप अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार जब लगाते हैं, you are speaking the truth. तो आप सत्य तो बोल रहे हैं, At the same time, you're receiving your healing. उसी समय जो है सत्य को सही रीति से बोल रहे हैं, और उसी समय जो है अपनी चंगाई को आप ले रहे हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, fear is the gate. भय जो है वो फाटक है। The spirit of infirmity, first and foremost, knocks at the gate. और देखिए, ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा जो है पहले तो फाटक पर खटखटाती है, And if you open the gate, और अगर आप जो है फाटक को खोलते if you हैं, don't drive it from there, अगर वहां से उसको खदेड़ नहीं देते it will हैं, enter the gates and come to the door. तो वो फाटक के अंदर प्रवेश करेगी और अंदर आएगी दरवाजे पर, And knock at your door. और आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देगी। When you vocalize, when you verbalize all your fears through confession, it enters the door also. और जब आप जो है, जो आपका भय है, जो आपके विचारों में भय है, वो विचारों में भय को आप जब मुंह से कबूल करते हैं, तब जाकर जो है ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा के लिए आपने दरवाजे को खोल दिया है। Praise God. The moment you open the door, that it will enter inside. और जब आप ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा के लिए दरवाजा खोलेंगे तो वो अंदर आएगी। That seed that the enemy has sown and begin to sprout out. अब जो बीज शत्रु ने बोया हुआ है, वो अब जो है अंकुर फूट कर जो है वो बढ़ने लग जाता है। And number 3 thing, और तीसरी बात, acceptance in the spirit. आत्मा में स्वीकारना। You know, when you say that I have fever, जब आप ये कहते हैं कि मुझे बुखार है, you vocalized it and allowed that seed to sprout out. आपने इसको जो है मुंह से कबूल किया, और ये बीज जो है वो बीज का अंकुर जो है फूट कर ये उगने लगा। And when that thing comes up, अब जब ये उगता है, you have still a choice. अभी भी चुनाव है। You can uproot that particular little sprout. You can reboot and uproot it out of ये you. छोटा सा अंकुर जो फूटा है, आप जो है आपके पास में चुनाव है कि आप इसको उखाड़ दे। If you do that, the enemy cannot do much about अगर it. आप जो है उखाड़ देते हैं तो शत्रु जो है बस वहीं तक रहेगा, But we don't do it. लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। We beautify it. हम उसको सुंदर कर देते We हैं, water it. हम उसको पानी डाल We देते take हैं, care of it. हम उसकी देखरेख We करते हैं, allow it to be there. हम होने देते हैं कि वो वहां पे रहे। When you allow it to be जब there, हम होने देते हैं कि वो वहां पे रहे, it grows up to become big tree तो ये बढ़ जाता है और बड़ा सा वृक्ष बन जाता and है, begin to give fruits. और फिर फल देने लग जाता है। My brothers and my sisters, many of us have accepted the spirit of infirmity into our spirit. That is why we are weak in our bodies. That is why we are going through diseases and infirmities in us. मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने जो है ये दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को जो है अपनी आत्मा में मानो स्वीकार कर लिया, और इसके वजह से जो है हम दुर्बल है, हम पूरी रीति से लाचारी की अवस्था में है। Please understand one thing. कृपा कर इस बात को समझ A लीजिएगा, Christian cannot be possessed. एक मसीह को जो है कोई कब्जा नहीं कर सकता। Demons cannot possess a Christian. और देखिए, दुष्ट आत्माएं जो है एक मसीह पर हक नहीं जमा सकते हैं। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। He cannot come and possess you. शत्रु जो है आकर आप पर कब्जा नहीं कर सकता But है, he can do one thing. लेकिन वो ये कर सकता He है, can oppress you. वो पूरी रीति से आपको दबा सकता How है। will the enemy oppress you? कैसे शत्रु आपको दबाएगा? Through the thoughts of fear, भय
के विचारों के जरिए, when you allow those thoughts of fear to come into you, जब आप ऐसा होने देते हैं कि ये भय के विचार आपके अंदर when आए, you verbalize the thoughts जब of आप जो fear, है मुंह से कबूल करते हैं, that you are allowing that thing to grow. आप होने देते हैं कि ये चीज, ये जो बीज बोया गया है, ये बड़े, Slowly that you accept it in your spirit. और आप अपनी आत्मा में धीरे करके इसको स्वीकार लेते हैं, And you allow it as part and parcel of a thing. It is there, I cannot do और anything फिर about होने it. देते हैं कि ये जो है जीवन का भाग है, अभी ये है, अभी इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। My brothers and my मेरे भाइयों, मेरी sisters, बहनों, you have the power to rebuke it. देखिए आपको वो सामर्थ्य है, या आप में वो सामर्थ्य है उसको नकारने के लिए। You have the power to crush the enemy. आप में सामर्थ्य है कि आप शत्रु की बातों को जो है पूरी रीति से मसल दे, कुचल दे। For heaven's sake, accept it and overcome it in the name of स्वर्ग Jesus के लिए जो Christ. है इस बात को स्वीकारिएगा और आप हावी हो जाइएगा यीशु मसीह के नाम It's से। rather unfortunate that this woman had the truth, but unfortunately she did not exercise the power that she had in the Lord Jesus और देखिए Christ. दुर्भाग्यवश ये स्त्री सत्य तो था, लेकिन वो उस सामर्थ को काम में न ला पाई। You have the truth. आपके पास सत्य है, You have the promises. आपके पास में वो वादे You हैं, have the completed work on the cross. और यीशु मसीह का पूरा किया हुआ काम जो है हमारे लिए You है, have the new covenant. और नया वाचा है हमारा। My brothers and my मेरे भाइयों, मेरी sisters, बहनों, open yourself to this truth. आप इन सत्यों के लिए अपने आप को खोल दीजिएगा। Open the gates to the truth. आप जो है फाटकों को इस सत्य के लिए खोल Healing दीजिएगा। to the truth. चंगाई के सत्य के लिए ये फाटकों को खोल Just दीजिएगा, open your doors to the healing of the और Lord, परमेश्वर के चंगाई के लिए अपने जीवनों के द्वार को खोल दीजिएगा, not to the enemy. शत्रु के लिए नहीं। As you do it, जैसे आप ऐसा करते हैं, healing shall be a portion in the name of चंगाई Jesus आपका भाग Christ. होगा यीशु मसीह के नाम Healing से। shall be a portion in the चंगाई name of आपका Jesus भाग होगा Christ. यीशु You know मसीह के what नाम did से। Jesus Christ do? देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, He commanded the demon to depart from her. उन्होंने आज्ञा दी कि दुष्ट आत्मा जो है उस स्त्री को छोड़कर निकल जाए। Look at the words of Jesus Christ. यीशु मसीह ने क्या कहा, He said, as it is a finished work. जैसे मतलब काम पूरा हो गया है, He said, woman, ने कहा स्त्री, it's an address. It's an address to the woman. और स्त्री से यीशु मसीह बात कर रहे He हैं said, woman, कि स्त्री you are loosed from your infirmity. कि स्त्री तू अपनी दुर्बलता से मुक्त हो गई है, छूट गई है। You know, much before that he laid his hand on her, उन पर हाथ रखने से पहले he said these words. उन्होंने ये शब्दों को बोल And दिए, then just laid his hand. और फिर चलकर हाथ रखे, As he laid his hand on और her, जैसे मसीह ने हाथ रखा, the demonic powers had no other option. वो शैतानी शक्तियों का उनको और कोई पर्याय नहीं था। When the illumination of the truth came in, जब सत्य का प्रकाश आया, you know, the enemy had no other option. और शत्रु को और कोई जगह नहीं थी, या और The कोई पर्याय नहीं darkness था, had no other option अंधकार के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, but to be uprooted from that person. लेकिन उस व्यक्ति के जीवन से निकल You know, her life was गया। like this, उनका जीवन इस प्रकार से था, doubly folded, पूरी रीति से झुकी हुई, doubly bent, पूरी रीति से झुकी हुई, and her life suddenly became like this. और ये स्त्री का जीवन जो है सीधा हो I गया। pray मैं प्रार्थना करता हूँ, everything that is looking down in your life, आपके जीवन में जो बातें इस तरह से ये कुबड़ी स्त्री की तरह may दिख it रही है, begin to look up into his glory in the name of जो Jesus झुकी Christ. हुई है आपके जीवनों में बातें, वो सीधी हो जाए उनकी महिमा के लिए यीशु I मसीह के नाम pray से। every good opportunity that you are missing today, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अच्छे मौकों को आप गवा रहे हैं आज, every good blessing that you're missing today, जो भी अच्छी आशीषों को आप मिस कर रहे हैं the आज, Lord Almighty may restore you to the earlier stage and bring you back to that great blessing in the name of Jesus परमेश्वर Christ. जो है आपकी पुनर्स्थापना करे और आपको वो महान आशीषों में ले आए पुनः यीशु मसीहा के नाम My से। brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी you बहनों, don't have to suffer. आपको जो है कष्टित रहने की जरूरत You नहीं don't है। have to tremble at the fear of corona. कोरोना को लेकर जो है आपको थरथराने की जरूरत This नहीं one है। died and that one died. ये मर गया, वो मर गया। Right in front of my house there is somebody with corona. मेरे घर के सामने जो है
में कोई कोरोना ग्रस्त है, My very close friend died. मेरे बहुत ही नजदीकी My very व्यक्ति, close relative died. सगे संबंधी मर गए, You don't have to fear like this. आपको भय मानने की जरूरत नहीं You है। don't have to allow those thoughts to come into उन you. विचारों को आपके मन में आने मत देना। Be wise in the Lord. प्रभु में बुद्धिमान रहना। Make sure that you take care of yourself. आप निश्चय कर लेना कि आप अपनी देख रेख Make करें। sure that your immunity is at the best. आप ये निश्चय कर लेना कि आपकी इम्यूनिटी ठीक है। Make sure that you don't expose anyhow. आप जो है कैसे भी अपने आप को एक्सपोज न करें। Make sure that you keep the social distancing. आप जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। Make sure that all the government tells that you do. जो शासन कहती है आप करिएगा। But most importantly, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण above all, बात, सारी बातों से cover बढ़कर yourself with the blood of अपने आप को Jesus. यीशु मसीह के लहू से ढक कर Trust in रखिएगा। the Lord. प्रभु पर भरोसा कीजिएगा। Tell the enemy शत्रु से and the कहना fearful spirits और जो The दुष्ट spirit of आत्माएं भय को लाती हैं उनसे कहना not to bring in any of its reports. कि ये दुष्ट आत्माएं जो है अपने रिपोर्ट्स को आप तक न लाए। Don't believe in the report of the enemy. शत्रु के रिपोर्ट पर आप विश्वास मत करिएगा। It's well with you. आपके साथ में सब कुशल The है। Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ He है। is your healer. वो आपकी चंगाई Before करने you वाले will दाता come है to know, nothing is going to be there. और कुछ भी नहीं होगा। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Hallelujah. Amen। I repeat, मैं दोहराता हूँ, good times अच्छे समय and bad और times, बुरे समय they come and go. आकर चले जाते हैं। If you're going through a bad time, अगर बुरा समय चल रहा है it is going to pass. वो निकलने वाला है। Good times are going to come. अच्छे समय आने वाले The हैं। Lord is going to minister to you. परमेश्वर आपकी सेवकाई Right now, करेंगे। even as you're listening to जैसे me, आप सुन रहे हैं if there आज, is any virus in your body, अगर आपके शरीर में कोई वायरस just है, the way that Jesus commanded, जिस रीति से यीशु मसीह ने आज्ञा दी just the way that Jesus brought a report, और जिस रीति से यीशु मसीह ने Just वो the way रिपोर्ट को लाया, समाचार the को Lord लाया, addressed the woman. और जिस तरीके से यीशु मसीह ने उस I स्त्री से बात address की, you in the name of मैं आपसे Jesus. बात करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। I address you in the name मैं of आपसे Jesus. बात करता हूँ यीशु मसीह के नाम You से। are loose from every hold of corona in the name of Jesus. मैं आज्ञा देता हूँ कि आप पूरी रीति से छूट गए हैं कोरोना के पकड़ से यीशु मसीह के नाम से। Healing is your portion. चंगाई आपका भाग है In the name of Jesus मसीह Christ. यीशु के नाम से। Every spirit of fear, हर एक भय की I आत्मा, command it to be uprooted utterly. हर एक भय की दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूँ, मैं उखाड़ देता हूँ यीशु मसीह के Every नाम से। negative confession, हर एक नकारात्मक जो आपने बोला every है, confession that is from the pit of hell, हर एक नकारात्मक बोली जो नर की खाई से I है, reverse it in the name of मैं Jesus. उसको उलट देता हूँ यीशु मसीह के नाम I से। speak life over you, मैं आपके जीवन में जीवन को बोलता हूँ, abundant life over you. बहुतायत के जीवन को You बोलता will हूँ। not lack anything. तुम्हारे जीवन में कोई कमी You नहीं will not होगी, lack anything. कोई कमी नहीं होगी। You will experience the glory of God in your body. परमेश्वर की महिमा को आपके शरीर में आप अनुभव You करेंगे। will manifest it with your mouth. आप अपने मुंह से जो आपने महिमा को आपने अनुभव किया, अपने The- मुंह से कबूल The करेंगे। world will see the glory of God in you. परमेश्वर की महिमा को दुनिया देखेगी आप में, In the name of Jesus मसीह Christ. यीशु के नाम With that, से। I want us to close our इसी के eyes. साथ आइए अपने Look आंखों को unto the खोल देंगे, Lord. परमेश्वर की ओर Cry देखेंगे, to the Lord. परमेश्वर के And सामने tell the Lord. रोकर कहेंगे, Receive every pronouncement that has come this morning. जो भी घोषणाएं आपके जीवन पर आई है, सकारात्मक घोषणाएं, आप उसको स्वीकार कर It's लीजिए। well मसीह के with नाम। you. आपके साथ सब कुशल है, It's well with you. आपके साथ सब कुशल Every है। gate जो भी फाटक that you're open to the wrong, जो आप गलत के लिए खोले हैं, shut it in the name of बंद कर Jesus. दीजिएगा यीशु के नाम से। Every gate हर एक फाटक that is closed, जो बंद है, today you open it up to the word of God वो in the name of फाटक Jesus. जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए बंद है, उसको आज खोल दीजिएगा यीशु के नाम से। May the Lord minister to you. प्रभु आपकी सेवकाई करे, May the Lord minister to प्रभु you. आपकी सेवकाई करे, Talk to the Lord. परमेश्वर से बात Go on कीजिएगा। your knees and talk to the आप Lord. अपने घुटनों पर आकर Tell परमेश्वर the से Lord, बात कीजिएगा। my trust is in you, Lord. आप प्रभु से कहिएगा कि मेरा भरोसा परमेश्वर आप पर I है, hold on to you, मैं Jehovah. आपको धर कर रहता हूँ Help परमेश्वर, me and enable me. मेरी मदद कीजिएगा, होने I will दीजिएगा। not come under the power of the enemy. मैं शत्रु के सामर्थ के आड़ में नहीं आऊंगा, In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से, In the name of Jesus. मसीह यीशु के नाम से। In the name of Jesus. I'm no longer a slave to fear. Lift up your voices and talk to the Lord with I this song. am आप a अपनी आवाजों को child. उठाकर परमेश्वर से बात कीजिएगा इस गीत को लेकर। Oh, I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child.
अब मैं बेकार नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। From my mother's womb, you have chosen me. Oh, love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer. Confess it and say that. A slave to fear. आप अपने मुंह से कबूल कीजिएगा और बोलिएगा I am मैं परमेश्वर का संतान a child of God. I am a child of God. Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से I come into the throne of grace, हम Lord, आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष with आते the हैं। power that you entrusted upon me. परमेश्वर जो सामर्थ आपने मुझ पर रखा है वो सामर्थ के जरिए I command every power of the enemy to be utterly uprooted in your children of Father. मैं आज्ञा देता हूँ कि शत्रु का सामर्थ पूरी रीति से आपके बच्चों के जीवन से उखाड़ दी जाए। I address all these children of Father परमेश्वर इन सारे बच्चों से मैं बोलता हूँ and I say और मैं कहता हूँ that you're loosed from every spirit of infirmity in the name of Jesus. हर एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से आप आजाद हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, छूट गए हैं यीशु मसीह के नाम से। In the name of Yeshua HaMashiach, यीशुआ हमशीह के नाम से you are loosed. आप छूट गए हैं। No power of the enemy शत्रु का कोई भी सामर्थ, has any power over you. उसका कोई सामर्थ आप पर नहीं होगा In the name of Yeshua HaMashiach. यीशुआ हमशीह के नाम से। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Glorify you. हम Master. आपको महिमा देते Exalt you, हैं, Majesty. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं Father, प्रभु जी। thank you for speaking to us this morning. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सवेरे के वक्त हमसे बात करने के लिए। Speaking to us, Lord, this morning. इस सवेरे के वक्त हमसे बात करने के लिए हम आपको धन्यवाद Even देते as हैं। we heard a lot, जैसे हमने आपको सुना, Lord, here onwards we will not keep our ears open to the enemy, Lord. अब से आइंदा परमेश्वर हम अपने कानों को शत्रु के लिए नहीं खोलेंगे। We will resist every fearful thoughts. परमेश्वर हर एक भय को उत्पन्न करने वाले विचारों के विरुद्ध में हम आएंगे। We watch every confession of our mouth, Lord. हम अपने मुंह से क्या कबूली करते हैं उस पर हम ध्यान देंगे We will परमेश्वर। not accept the work of the enemy in us. हमारे अंदर शत्रु के कामों को हम स्वीकारेंगे नहीं। Lord, today, आज प्रभु जी, Lord, we destroy every throne that the enemy has built within us, Lord. हमारे अंदर शत्रु ने जो भी सिंहासन को बनाया हुआ है उसको हम पूरी रीति से नाश कर देते हैं यीशु मसीह के नाम Lord, से। you help us out of it in the name of प्रभु जी, आप Jesus. हमारी मदद सहायता कीजिएगा यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते In हैं Jesus' यीशु के matchless अतुल्य precious मूल्यवान नाम से name, we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My brothers, my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, this morning that the Lord has spoken to you, इस सवेरे के वक्त परमेश्वर ने आपसे बात की He है। has told you not to allow the fearful thoughts to enter inside. उन्होंने आपसे कहा है कि प्लीज होने मत देना कि आप भय उत्पन्न करने वाले विचारों को जगह दे। He has ministered to you and said not to confess negatively. उन्होंने आपसे बात करते हुए कहा कि नकारात्मक कबूली को मत करना, And most importantly, और सबसे महत्वपूर्ण बात, don't accept any report of the enemy. शत्रु के रिपोर्ट को स्वीकारना बिल्कुल भी Hold on नहीं। to the Lord. परमेश्वर को धरकर Hold रहना, on to His word. उनके वचन को पकड़ कर रहना। Watch your words. आप जो बोलते हैं उस पर ध्यान देना Let थोड़ा। everything that comes out of your mouth be in line with the word of जो God. भी आपके मुंह से निकलता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए। You will see every discomfort, every disease, every infirmity, every spirit that is contrary and from the pit of hell shall be utterly uprooted out आप of you. देख पाओगे कि हर एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्माएं जो नर की खाई से है, वो पूरी रीति से आपके जीवन को छोड़कर जाएगी। Praise the Lord. Hallelujah. So with that, I request all of us to
come to the time of worship in giving. आइए हम आगे चलते हुए हम आगे बढ़ते हुए हम आराधना में आगे जाएंगे, हम भेंट को चढ़ाने के आराधना में Let me जाएंगे। say this very clearly. मैं ये आपसे कहूँ स्पष्ट रीति से, Giving is an attitude. भेंट चढ़ाना जो है वो एक प्रवृत्ति है। You know, if you develop that attitude अगर आप में वो प्रवृत्ति होगी, with the right way that you give, सही तरीके से जब आप भेंट को चढ़ाते हैं, अर्पण को you चढ़ाते will हैं, not lack for anything good in your life. आपके जीवन में कोई भी अच्छी बात की कमतरता नहीं The होगी। Lord will minister to you in every area of your life. परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सेवकाई But करेंगे। it's very important for you to be cheerful, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप जो है आनंद के साथ right in front of God, परमेश्वर के सामने होते हुए, without grumbling, कुड़कुड़ाते शिकायत without करते हुए नहीं, complaining, sow in with the right understanding. सही समझ के साथ आप बोना। Praise God, even as you do it this morning, जैसे आप ऐसा करते हैं सवेरे के वक्त, you shall experience an overflow even in the midst of this pandemic. इस महामारी या इन महामारी के समयों में भी आप जो है बहुतायिकता का अनुभव I करोगे। request the elder of the family परिवार में जो वरिष्ठ जन हैं, to collect the offerings आप and जो है tithes. भेंट को और दशमांश को इकट्ठा कर लीजिएगा। You have two options. दो ऑप्शन है आपके पास। Option number one, पहला ऑप्शन, take the details, bank details from us हमसे बैंक डिटेल्स को ले लीजिएगा and post it to the bank account directly, और कलीसिया के बैंक अकाउंट में आप डाल सकते हैं or डायरेक्टली, collect it and keep it with you या फिर अपने पास ही इकट्ठा करके रख लीजिएगा until the time that we all come together in the physical जब तक कि services, हम जो है स्वाभाविक रूप में इकट्ठे न हो जाए। so that we can give unto the Lord wholeheartedly. और जब हम इकट्ठे आएंगे तब हम जो है जो हमने जमा किया है वो हम भेंट चढ़ाएंगे। Praise God. So with that, I request the elder of the family घर में जो वरिष्ठ जन है, to lay the hands on the offering. आप जो है भेंट पर And the हाथ को tithe. रखें, हाथ को And रखें, let's दशमांश को pray. भेंट पर हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank प्रभु जी, you. हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते हैं। Lord, we have given प्रभु out जी। of the abundance that you have given unto us, Lord. प्रभु जी, जो आपने कितना कुछ हमको दिया हुआ है प्रभु, उससे हम ये आपके सामने अर्पण कर रहे हैं। What we have given is nothing in comparison to what you have given unto जो us, हमने Lord. दिया हुआ है उसकी तुलना में कुछ नहीं है जो आपने दिया हुआ है। Lord, we pray, प्रभु जी, हम प्रार्थना even करते हैं as this particular seed has been sown, कि जैसे ये Lord, बीज हमने बोया हुआ है, Lord, may it bring a harvest of good into the lives of your people in the name of प्रभु Jesus जी, हम Christ. प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवनों, आपके बच्चों के जीवनों में परमेश्वर, इसके जरिए परमेश्वर फल आए, बहुतायत से आए, यीशु मसीह के नाम This से। tithe and offering is just a token of Father. प्रभु जी, ये दशमांश और ये भेंट परमेश्वर केवल एक टोकन है। Lord, may this token answer us in the time of our need in the name of Jesus परमेश्वर होने दे Christ. कि ये टोकन हमारे जरूरत के समय प्रभु जी आपको याद आए, हमारे लिए बात करें यीशु के नाम से। We pray that we will not stretch our hands in front of anyone, O प्रभु, Lord. हमारी प्रार्थना ये है प्रभु, होने मत देना कि हम किसी के सामने अपने हाथ को फैलाएं। Even as we are stretched our hands to give, जैसे हमने अपने हाथों को बढ़ाया है आपके राज्य में बोने के give लिए, unto your kingdom. आपके राज्य में बोने के लिए। Lord, we may not stretch our hands before any man. प्रभु जी, हम किसी मनुष्य के सामने अपने हाथ को न In फैलाएं। the name of Yeshua मसीह HaMashiach. यीशु के नाम से Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते In हैं। Yeshua HaMashiach's name we make this prayer. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. You shall surely experience abundance in every area of your life in the name of मैन, Jesus. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप जो है बहुतायिकता का अनुभव करेंगे यीशु मसीह के नाम से। My brothers and my मेरे भाई, sisters, मेरी बहनों, this morning I want to bring to you quickly the announcements. जल्द से मैं सूचनाओं को आपके सामने लाऊंगा। Just want to remind you all our services are going to be online. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी सारी सभाएं जो है वो ऑनलाइन होंगी। That means to say that the house churches will continue on Zoom. इसका मतलब ये है कि जो घर कलीसियाएं हैं वो जूम पर जारी On रहेगी। Wednesday evening we conduct the Bible studies बुधवार and के you दिन। can get the link for the Bible studies from us. बुधवार के दिन जो है बाइबल का अध्ययन हम करते हैं, लिंक हमसे ले लीजिएगा। On Fridays we have a teen church. शुक्रवार के दिन जो है टीन कलीसियां होती हैं। Saturday morning the fasting prayer. शनिवार के दिन जो है सवेरे के वक्त उपवास प्रार्थना में हम आते Evening the हैं। youth church. शाम के वक्त युवकों की सभा, And most importantly, और सबसे महत्वपूर्ण on Sunday morning, every Sunday morning 10 o'clock we are online until the time
where the government allows us physical services. हर रविवार के दिन जो है हम ऑनलाइन होते हैं 10 बजे, जब तक कि गवर्नमेंट जो है हमको मिलने की अनुमति नहीं देती है। I personally want to edify you. व्यक्तिगत रूप में मैं आपको कहना चाहूँगा, From Monday to Friday, मंडे से लेकर फ्राइडे I तक request all of you to be with me हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ for a रहिए, time of devotion मेरे साथ रहिएगा डिवोशन के समय के लिए। from 11 a.m. 11 बजे सवेरे के वक्त से maximum 11:30 a.m. 11:30 बजे तक For सवेरे just 30 minutes, 30 मिनट के लिए we will hear from the Lord. हम प्रभु से सुनेंगे। 3 days the devotion 3 दिन डिवोशन and 2 days the nuggets of leadership. और 2 दिन जो है लीडरशिप्स के नगेट्स। You know, these things will edify us, build us in the Lord Jesus और Christ. ये जो बातें हैं हमको मसीह में बनाएंगे, यीशु मसीह के I नाम want से। to encourage each one of you हम आप हर एक को प्रोत्साहित करना to be चाहेंगे part of it without fear. कि आप इसके भागी होना Take बिना out. चूके। Take out the 30 minutes. वो 30 मिनट ले लीजिएगा। The Lord will surely speak to you every morning. प्रभु निश्चय ही हर सवेरे के वक्त आपसे बात In करेंगे the name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम से। Now with that, अभी इसी के I साथ request all of us to look into the Lord हम जो है प्रभु की ओर देखेंगे in prayer, प्रार्थना में। in the final prayer. आखिर की प्रार्थना में। Father, we thank प्रभु जी you. हम आपको धन्यवाद We देते thank you हैं, that you're God. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि We आप thank परमेश्वर you हैं। that you reign and rule supreme over us. धन्यवाद क्योंकि आपका राज हमारे जीवन पर है। This morning, your presence is in our इस midst. सवेरे के वक्त आपकी उपस्थिति हमारे बीच This में है। morning, wherever your children are, oh Lord, there you're spoken to them. और परमेश्वर इस सवेरे के वक्त जहाँ कहीं भी आपके बच्चे हैं, आपने उनसे बात की You है। stirred their hearts, oh Lord. परमेश्वर आपने उनके हृदयों को हिलाया है। Lord, you have given them an assurance, Daddy, प्रभु जी आपने इस बात का प्रमाण दिया हुआ है that you will set them free from every clutch of the enemy. कि आप उनको शत्रु के हर एक पकड़ से आजाद करेंगे, मुक्त Lord, that करेंगे। you will answer them कि expressly, प्रभु जी आप उनको जवाब देंगे, especially by healing them of every disease, oh Father, परमेश्वर हर एक रोग से चंगाई को देकर, from every infirmity, Father, परमेश्वर हर एक दुर्बलता से प्रभु जी उनको मुक्त कर कर in the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम Well, से thank you, Father. हम आपको धन्यवाद We देते glorify you, हैं, हम Lord. आपको महिमा देते This हैं। morning, as your son and his इस servant, सवेरे के वक्त आपका बेटा और सेवक होने Lord, के I नाते bring everyone who's part of the Crown of Life Ministries, परमेश्वर जो भी द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के भागी हैं, and also those ones who are under the unction of my voice under जो the throne of लोग grace, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सारों को मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष लाता हूँ। I cover them with the blood of यीशु के लहू Jesus. से उनको ढाकता हूँ। No power of the enemy may ever befall on them. शत्रु का कोई सामर्थ इन पर सफल न होने I पाए। pray that grace which is from heaven be their portion, of Father. मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग का अनुग्रह इनका भाग हो, Lord, I pray the favor be their portion, कि of कृपा Father. दृष्टि इनका भाग हो, I pray the victory that belongs to you be their portion, of कि Father. जय जो आपका है इनका भाग हो। I pray wherever that they turn, O Lord, that they may experience good of you in every way, in every manner, in the name of जहाँ Jesus कहीं Christ. भी ये मुड़े, ये आपके अच्छाई, आपके भलाई का अनुभव करे हर प्रकार से मसीह यीशु के नाम Thank से। you, Father. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते Glorify you, हैं, Master. हम आपको महिमा देते Exalt you, हैं, हम magnify आपके नाम को ऊंचा In उठाते हैं। Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and और precious मूल्यवान नाम name, से I make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Shall we share the grace? अनुग्रह को बांटते The हैं। grace, अनुग्रह। the grace of our Lord प्रभु Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह, the love of पिता God, का प्रेम, and the sweet fellowship of the पवित्र Holy आत्मा की Spirit संगति be with us हमारे साथ रहे now अभी and forevermore. और अनंतकाल। Amen. आमीन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall भलाई और follow करुणा you हमारा अनुसरण all the करेगी days of your हमारे life, पूरे जीवन and भर, you shall dwell in the और house of आप the Lord यहोवा के भवन में निवास now करोगे अब and forevermore. और युगानुयुग। Amen. आमीन। Now lay that right hand on अब yourself वो दाहिना हाथ जो है अपने and सर पर रखे pronounce और upon कहे yourself this thing. और ये घोषणा को अपने जीवन पर करें कि Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow me भलाई और करुणा मेरा अनुसरण all the करेगी days of my life, मेरे पूरे जीवन भर, and I shall dwell in the और house of मैं the Lord यहोवा के भवन में बनी रहूंगी now अभी and forevermore. और युगानुयुग। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is with प्रभु you. आपके साथ हैं, Go into the week. आप सप्ताह में जाइएगा, Stay blessed. आशीषित रहिएगा।